Mics shut and we will start our session very soon. It is requested from all the members to kindly keep their mic off. I am audible, sir? Yes, sir. You're absolutely audible. Thank you. Very good afternoon to respected dignitaries, governing body members of RAV, Director RAV Vandana Suryavanshi ma'am, Gurujans. I welcome you all in another intellectual session of Gyan Ganga webinar series. I, Dr. Mridul Tiwari, on behalf of RAV, welcome you all for today's session. On the onset, we would like to express our heartfelt gratitude and welcome our mentors who have always been there to guide, motivate, and encourage us for sustenance of this series. Respected Vaidya Sri Devendra Tugnaji, President of Governing Body Rashtriya Ayurved Vidyapith, respected Vaidya Sri Rajesh Kotecha Sir, Secretary, Ministry of Ayush, respected Dr. Vandana Suryavanshi ma'am, Director of Rashtriya Ayurved Vidyapith. Our today's guest speaker is Vaidya Ravindra Vatsyayan Sir, CRAV Guru Kaya Chikitsa, Chief Physician, Sanjeevani Ayurved Shala, Ludhiana, Punjab, who has joined us today in the 259th episode of this knowledge voyage. Let us begin the session by seeking the blessings of Lord Dhanvantri. Now, I would like to introduce our today's expert, Vaidya Ravindra Vatsyayan Sir, who is going to throw the light on the topic Amvat Rheumatoid Arthritis, the clinical perspective. Sir is a renowned Ayurveda physician from Ludhiana with over 50 years of clinical experience and Ayurvedacharya from Government Ayurved College, Patiala, 1976. He is recognized for promoting Ayurvedic authentic practices in Punjab. He has served on several prestigious bodies, including Central Council of Research in Ayurveda Sciences, the Medicinal Plant Board, the Drug Licensing Authority of Punjab, and Guru Ravidas Ayurvedic University. A guru under Rashtriya Ayurved Vidyapith since 2010, he has trained numerous students through Guru Shishya tradition. An accomplished author, speaker, and columnist, he has received several honors, including the prestigious Dhanvantri Award, Vaidya Shiromani Award, and the Fellowship of Rashtriya Ayurved Vidyapith. Now, I would like to invite Sir to proceed with the lecture. Most welcome, sir. Thank you very much. Vagarthaviv samprikto, Vagarth Pratipatte, Jagatay Pitro Vande, Parvati Parameshwaro. While starting this interaction, I first of all would invoke the blessings of the divine duo, the parents of the world, Parvati and Shankarji, who are inseparable just like a word and its sense, in order to guide me in acquiring the right understanding of words and their meanings. I take this opportunity to greet Vaidya Devendra Trigunaji and Madam Vandana Suryavanshi and Kotecha ji, respectively, the President, Director, and Secretary of Ayurveda Department. Ahamam Sarvesha Gurunam cha Ludhiana Nagare Vasine. Panchnad Pradesh se Satluj Nadi Tate Sthitam Swagatam Kurve. And from the Panchnad Pradesh, that is Punjab, right from the bank of the river Shatadru, which is today called Satluj, I welcome my fellow gurus whose scholarly company always give me something new to learn and innovate, and the Shishyas who are just like our own sons and daughters, who always keep their respective gurus in their action mode. 3 days from now, in all humility, I share with you that I'm completing 50 years of my public and professional life. It became possible due to the blessings of the elders and other scholars who have inspired and blessed me. Now, starting with the topic. Today's our topic is Amvat, and which is closely translated to rheumatoid arthritis. अपने आप में आमवात एक बड़ी टर्म है, आर्थराइटिस उसका एक प्रतिनिधि हम बना के उसको हम कहते हैं कई बार। और जब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं तो उसका मेन मकसद तो यही होता है कि हम बता रहे हैं कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है। और हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है हमारे देश में या बाहर के कंट्रीज में, lot many patients visit us suffering from arthritis. एंड जब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं, यूजुअली आर्थराइटिस दो आर्थराइटिस ऑफ 100 of types,
but usually three type of main arthritis is we met in our clinics. The rheumatoid arthritis, जिसको हम, फिर मैं वही बात कहूंगा कि आम वात एक बड़ी टर्म है, तो क्लोजली उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस लेते हैं। और फिर संधिगत वात जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और तीसरा फिर गाउटी आर्थराइटिस जिसे हम वात रक्त कहते हैं। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में जो उसका जो प्रेवलेंस है उसकी, वो जो जो हमारा सभ्यता संस्कृति और मैं ये कहूंगा कि संपन्नता का जिस तरीके से हमारा विकास होता आ रहा है, उस तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आम वात के केस भी ज्यादा बढ़ते आ रहे हैं। और जो स्टडीज हुई हैं उसके मुताबिक जो उत्तराखंड है वहां पर हाईएस्ट प्रेवलेंस पाई गई है, और गोवा में लोएस्ट प्रेवलेंस पाई गई है। और जो फीमेल्स हैं वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रेवलेंस पाई गई है, और मध्य प्रदेश में लोएस्ट पाई गई है। एंड उसके अलावा भी जो हमारी चेंजिंग डेमोग्राफी है, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनका बहुत बड़ा इसका एक रोल है इस डिजीज को पैदा करने में। और जहां पर हम इसको कॉजेटिव फैक्टर में, जब आम का अगर हम कंसेप्ट जब हम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों में भी इस चीज की कमी रही है, या हमारे उधर से जो एलोपैथी कोलीग्स हैं वहां से रिसेप्टर ऐसे नहीं रहे कि हम आम के कंसेप्ट को उनको। अर्लियर आयुर्वेदिक जो लिटरेचर है वो एक पासिंग रेफरेंसेस आम वात के उन्होंने दिए हैं, लेकिन बाद के जो ग्रंथ हैं, जो माधव और माधव निदान जी ने जो ग्रंथ, जो उनका ग्रंथ है कंपेडियम है, उसमें आम का वर्णन बेटर दिया गया है। और जो हमारी जैसे जो जितनी शरीर में हमारी अग्नियां हैं, धातुवाग्नियां हैं, और हमारी जो उसके अलावा जो टिश्यूज की अग्नि है, उसके अलावा एक और अग्नि जिसे जठराग्नि कहा गया है, सबसे प्रबल अग्नि जो कहा गया है। तो व्यू यही बनता है कि जठराग्नि जब हमारी दुर्बल हो जाए, और उसके बाद जो हमारा आहार है, जो उसका जो दूषित जो रस जो उसका बनता है, और वो जब हमारे शरीर में परिभ्रमण करता है, जहां पर ख विगुण्य, जहां पर उसका वीक स्पॉट्स बॉडी में होते हैं, तो वहां पर जाकर उसका स्थान संशय होता है। और जैसे आमाशयस कायग्ने दौर्बल्यादि विपाच्यता अद्य आहार धातु स अमिति कीर्तिता है। तो आम एक ऐसा एक टॉक्सिक और एक अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू है हमारी बॉडी में, जो डाइजेस्टिव फायर की दृष्टि से पैदा होता है, और डाइजेस्टिव फायर को फर्दर वो दूषित भी करता है। और इसके वेरियस फैक्टर इसके लिए हैं, इसमें इम्प्रॉपर डाइट है, इसमें इमोशनल स्ट्रेस है, लैक ऑफ जो मूवमेंट, जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये कई चीजें इसमें काउंट करती हैं इसको पैदा करने के लिए। और हमारे जो वाइटल चैनल्स हैं उनकी ऑब्स्ट्रक्शन, और शरीर में अन्य किसी जगह पर जो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं वो भी इसके लिए जिम्मेवार माने जाते हैं। और कई बार ऐसा हम क्लिनिक में देखते हैं कि जब बॉडी में कहीं और किसी ऑर्गन में विकृति या इन्फ्लेमेशन चल रही हो, तब भी कहीं ना कहीं हमारी अग्नि प्रभावित होती है। और उसके बाद जो पोस्ट डाइजेस्टिव जो हमारे जो रस बनता है, या जो कहते हैं कि विपाक के रूप में जो चीज गलत पैदा होती है, वो फिर जो हमारे शरीर में परिभ्रमण करती हुई हमारे जो वीक स्पॉट्स हैं, ख विगुण्य जहां पर है, तो वहां पर आकर ये संशय करती है। और आयुर्वेद का तो हमारा जो सारी जो हमारी जो सिद्धांत है वो आम और निराम के ऊपर ही है। जो निराम है अवस्था वही स्वास्थ्य है, जो आम अवस्था है वही उसी को डिजीज माना गया है। और फिर यहाँ पर जो बीमारियां हैं, वो एक प्रसिद्ध जो हमारा सूत्र है कि सभी रोग हैं वो मंद अग्नि से ही पैदा होते हैं। और जो अगर आपकी अग्नि जो है वो शुद्ध है, अग्नि आपकी ठीक है, बैलेंस है, सम है, तो शरीर का बल, आरोग्य, आयुष, सारी कुछ सब कुछ जो है ये सब उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो अग्नि की चिकित्सा ही बेसिकली काय चिकित्सा है। और अग्नि का जो दूषित होना और उसके बाद अगली बीमारियां पैदा होना, ना केवल आम वात बल्कि और ऐसे बहुत से रोग हैं जो अग्नि के विकार के रूप में पैदा होते हैं। अब यहाँ पर हम ब्रीफली इसके जो कारण हैं उनको हम डिस्कस करते हैं।
मैं आपसे छोटी सी ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसमें कोई या टॉक या कोई लेक्चर देने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। आप सब लोग मेरे कुलीग्स हो, मेरे से ज्यादा जानते हो और बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो। इट इज जस्ट लाइक शेयरिंग आवर व्यूज के हम जब क्लिनिक पे मेरे पास कोई पेशेंट आता है या मैं कैसे ट्रीट करता हूँ या मैंने उसे कैसे समझा, आपके पास बहुत पेशेंट आते हैं, कैसे हम लोग उसको मिलजुल के ट्रीट करते हैं। दीज आर जस्ट few points which we are discussing today. तो सबसे पहले जो मंदाग्नि है, जो उसके कारण जो है, सबसे पहले जो मंदाग्नि कई बार तो पूर्व रूप में भी पैदा होती है, और रॉन्ग डाइट, जो विरुद्ध आहार विहार, जो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है, और डाइटरीज impurity एंड टॉक्सिन्स प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ फॉल्टी डाइजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ अनसूटेबल इनकम्पेटिबल फ्रूट, जो फूड है, जो विरुद्ध आहार विहार है, काल विरुद्ध है, संयोग विरुद्ध है, जो रस विरुद्ध है, आपकी उम्र के भी विरुद्ध है। तो उन सब चीजों का जो खाना पीना जो है समय विरुद्ध है, जो तो उन जब चीजों का लगातार जब सेवन ऐसे चलता रहता है तो हमारी शरीर की अग्नि विकृत होती है। अग्नि विकृत होने से फिर जो दूषित उसका जो प्रभाव होता है वो आम वात के रूप में ही पैदा होता है। तो अदर फैक्टर्स, इसके अलावा जो दूसरे जो और फैक्टर्स हैं, जैसे इन्फेक्शंस हैं, तो बहुत दफा देखा जाता है कि जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो मूत्र नली का संक्रमण है, या लेडीज में ऐसी इन्फेक्शंस हैं, पीआईडी है, उनमें थ्रू विजाइना जो यूट्रस और बाकी ऑर्गन्स में स्वेलिंग है, तब भी ऐसे सिम्टम देखे जाते हैं। बहुत दफा हम जब लेडीज को ट्रीट करते हैं तो पहले उनका गायनी हिस्ट्री की लेकर प्रॉपर लेकर क्या कि हाँ वहां से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो तब आगे बढ़ते हैं। अगर वहीं उस लेवल पे कोई दिक्कत हो तो वहीं रुकना पड़ता है, पहले उस चीज का ट्रीटमेंट करने के बाद आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, इन्फेक्शंस और स्वेलिंग जो है शरीर में कहीं और चल रही हो, तो आम वात जैसे लक्षण या उस जैसी आपको जो रोग की जो प्रेजेंटेशन है आपको थोड़ी सी भ्रमित कर सकती है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज और ऑप्टिंग फॉर ओवर एक्सरसाइज, स्पेशली आफ्टर टेकिंग हैवी एंड ऑयली फूड, जो भोजन के बाद जो एक्सरसाइज करना है, सप्रेशन ऑफ नेचुरल बॉडी अर्जेस, ये जो वेगा अवरोध है, ये तो हर जगह हम इसको माना है कि बीमारी को पैदा करता है। एंड लिविंग इन डैम्प एंड स्क्वेलिड इन्वायरमेंट्स, ये देखा जाता है जहां पर सीलन भरे या अंधेरे या प्रॉपर लाइट ना आती हो, वहां पर रहने वाले लोगों को वात वृद्धि या दूषित आम या उसके लक्षण ज्यादा पैदा होते हैं। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल अपहीवल्स, जो आजकल की जो लाइफ है इतनी कम्पिटिटिव और कठिन लाइफ हो गई है, तो उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आपके शरीर के कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म को कह लीजिए, चाहे अपचाय की जो स्थिति है उसको, हमारे शरीर की अग्नि को, हमारे पाचन को, बल्कि स्ट्रेस इज समथिंग दैट विच इफेक्ट्स एवरी सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। कोई ऐसा अंग, कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसा कोई शरीर में हमारा ऐसा जगह नहीं है या कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसके ऊपर स्ट्रेस अपना बुरा प्रभाव ना डालता हो। इसके अलावा मैनी अननोन रीजन, चूंकि अभी भी मुझे तो ऐसा लगता है कि आम वात के ऊपर अभी कोई आखिरी शब्द नहीं लिखा गया। तो बहुत सी और ऐसी कंडीशंस जो विद्वान लोग वक्त वक्त पर इसको रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तो ऐसी अन्य और भी कोई फैक्टर होंगे जो इसको डिजीज को पैदा करते आ रहे हैं। चूंकि मेरे जो एलोपैथी मित्र हैं वो अक्सर किसी चीज को इडियोपैथिक कहकर या ऑटो इम्यून कहकर हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, तो उसमें और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब हम आयुर्वेदिक व्यू पॉइंट से देखते हैं, हमने आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, कालचर्या, हर चीज को हमने देखना है, तो उस हिसाब से हम उसको पिन पॉइंट करने की और नैरो डाउन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बीमारी का कारण क्या है। आम का जो उत्पत्ति तो वो तो है ही है, लेकिन आम उत्पत्ति में सभी लोगों में एक जैसे कारण नहीं होते। तो पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनका लाइफस्टाइल पूछते हैं, सुबह कितने बजे उठते हो, रात तक अब कैसे क्या करते हो, क्या खाते पीते हो, कैसे आपका जो कार्यस्थल है वहां का माहौल कैसा है, किस कंडीशन में आप रह रहे हो, तो मल्टीपल फैक्टर जो है वो काउंट होते हैं। तब अलग अलग लोगों में अलग अलग इसके रीजन देखे जाए हैं।
अब जो आम वात के जो पूर्व रूप हैं, जब पेशेंट की प्रेजेंटेशन उसकी आती हैं, तो सबसे पहले तो है कि मंदाग्नि का होना, जो लॉस ऑफ एपिटाइट और लेथार्जी। पेशेंट यूजुअली इस चीज की हिस्ट्री देते हैं, मेलेज की, बॉडी एक की, और वीकनेस ऑफ लिम्स। अच्छे भले खाते पीते लोग, जो उनके अगर टेस्ट करा लीजिए, बाकी करा लीजिए, किसी चीज की कमी नजर नहीं आएगी। तो ये वो अवस्था है जब अभी शरीर में बनने की, उसकी वृद्धि की अवस्था शुरू हुई है। वो एक पूरी देह में ऐसे प्रभाव डाल रहा है, लेकिन अभी वो ज्वाइंट में उसका स्थान संचय उसका नहीं हुआ है। तो अगर हम आम के बाकी जो उसके लक्षण हैं, तो वही लक्षण आप एक एक करके अगर आप देखेंगे, तो आम वात के जो फ्लेयर ऑफ फेज है, जब जब आम वात की तीव्र अवस्था होती है, वो सभी लक्षण मिलते हैं। स्रोतोरोध, बलभ्रंश, शीर का भारीपन, वायु का रुकना, आलस्य, अपक्ति, निष्ठीवन, मल संग, अरुचि, क्लम। ये जो आम के जो वृद्धि के सभी लक्षण हैं, ये कॉपी बुक की तरह आपको आम वात के केसेस में मिलेंगे। तो इसलिए जो आम की जो हमारा सिद्धांत है, वो यहां पर आकर पूरी तरह से लागू और फलीभूत होता है। अब इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं आम वात की, और या आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आम भाषा में कह लूंगा, लेकिन फिर मैं आम वात के ऊपर ज्यादा बात करूंगा। कि सबसे पहले पेशेंट जो जो उसकी तीव्र अवस्था में हमारे पास आता है, तो वो यही कहता है कि मुझे मेरे सभी जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। तो कहा गया कि इट इज अ बाइट ऑफ लाइक दैट ऑफ स्कॉर्पियंस, जैसे बिच्छू दंशवत पीड़ा हो रही है। स्वेलिंग इन एंड मॉर्निंग स्टिफनेस। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट लक्षण हम पेशेंट से पूछते हैं कि भाई जब सुबह उठते हो तो कैसा लगता है, तो बेशतर पेशेंट यही कहेंगे कि मुझसे तो चाय भी नहीं बनाई जाती, मुझसे चाय का कप नहीं पकड़ा जाता, या मुझसे कोई और काम नहीं होता। और मॉर्निंग के 2 3 4 घंटे जब निकल जाते हैं, तो ऑलमोस्ट सिम्टम इसके रिलीव कम हो जाते हैं। और दोपहर को भी अगर पेशेंट सोकर उठे, तो यही सिम्टम दोबारा फिर उसके बाद पैदा हो जाते हैं। आफ्टर रेस्ट सिम्टम इसके बढ़ते हैं। और स्पिंडल लाइक अपीयरेंस ऑफ द फेलेंजेस, जो मिडिल हमारी फिंगर है, जो स्पिंडल बोलते हैं, जो तकला बोलते हैं हम उससे पंजाबी में, जो चरखे के बीच में लगता है, बीच में मोटा होता है, साइड पे पतला होता है। तो वो स्पिंडल लाइक मूवमेंट होती है, और उसमें पेन होती है बहुत ज्यादा। और पेशेंट अक्सर कहता है उंगली को, मिडिल उंगली को या लेके के देखो सर, यहाँ पर बहुत दर्द हो रही है। और फीवरिशनेस, बुखार की अनुभूति होती है, कई बार बुखार होता भी है, कई बार लगता है कि ऐसे बुखार है। और लिथार्जी और जनरल रन डाउन, उसमें पेशेंट में एक तरीके की उत्साहहीनता और लैक ऑफ ड्राइव, कुछ करने को दिल नहीं करता, और भूख कम हो जाती है। और आप टिपिकली पेशेंट के 2 4 सिम्टम बोलने के बाद ही ऑलमोस्ट हम इसको जज करने लग जाते हैं कि हाँ, ये आम वात का केस चल रहा है। और फ्लेयर ऑफ फेज के बाद फिर सब एक्यूट स्टेजेस आती हैं, जब पेशेंट कंट्रोल हो जाता है, उसकी डिजीज कंट्रोल थोड़ी सी हो जाती है। फिर उसके बाद जब पेशेंट, क्योंकि इस डिजीज में रिलैप्सिस एंड रिमिशंस, रोग का ठीक होना, फिर सब एक्यूट स्टेज में चले जाना, फिर उसके बाद उसका तीव्र अवस्था में आ जाना, ये ये फेजेस चलते रहते हैं। और बहुत पेशेंट है जो डाइट, लाइफस्टाइल या और चीजों से कंट्रोल भी रहते हैं, लेकिन फिर भी डिजीज का कोर्स ऐसा है, इसकी नेचर ऐसी है कि इसमें फ्लेयर अप चांसेस, जो उसको कोई एक्साइटिंग रीजन मिलता है बीमारी के बढ़ने का, तो डिजीज फिर बढ़ जाती है। और जब ये लोग क्रॉनिक स्टेज लेकर आते हैं, तब डेविएशन, अल्नर डेविएशन जो बाजू में होती है, और डिफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स, और लॉस ऑफ कार्टिलेज, एंड जो सपोर्टिंग मसल्स हैं उनका लॉस साथ होना, फिर एक बहुत एडवांस एक स्टेज बन जाती है। लेकिन ऐसे केसेस भी आते रहते हैं। और उसके बाद ऐसे सिम्टम, ऐसी चीजें भी हैं जिनमें ये बीमारी बढ़ती है। हालांकि हमारे देश में अलग अलग ऋतुएं, अलग अलग हमारे देश में हिल स्टेशंस भी हैं, हमारे देश में रेगिस्तान भी हैं, वहाँ पर मार्शी प्लेसेस भी हैं, जहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, वर्षा, वो प्लेसेस भी हैं। तो अलग अलग जो हमारे जो प्रदेश और काल के मुताबिक इस डिजीज की अपीयरेंसेस भी अलग अलग तरीके की आती हैं। जैसे क्लाउडी वेदर है और रेनी सीजन, इधर नॉर्दर्न इंडिया में जो जुलाई और अगस्त और सितंबर,
ये 3 महीने इन डिजीज वाले लोगों के लिए बड़ी खतरनाक होते हैं। यहाँ पर आम अवस्था अपनी तीव्रता पे होती है, विंटर्स में भी, और जिन लोगों को मेंटल स्ट्रेस रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए भी, और जो लोग अनसूटेबल डाइट जो प्रॉपर नहीं लेते उनके लिए, और रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ फिजियोथेरापिक मेजर्स एंड मसाजेस। आजकल क्या होगा कि एक तरीके का एक ट्रेंड चल गया फिजियोथेरापी का। लोगों ने नो डाउट फिजियोथेरापी बहुत अच्छी साइंस है, और मैं कई बार तो मुझे ऐसे लगता है ये एक जिसे कहते हैं अंडर वैल्यू की हुई साइंस है। इसका बड़ा महत्व है किसी ना किसी स्टेज में, लेकिन एक्यूट स्टेज में, तीव्र अवस्था जब होती है बीमारी की, और खास तौर पे आम वात की, उस वक्त फिजियोथेरापी की हुई है वो डिजीज को एग्रीवेट करती है। इसी तरीके से मिसाजेस हैं, क्योंकि मिसाजेस भी मैं मानता हूं कि इसके भी कई तरह के इसके आयाम हैं। एक तो थेरापेटिक मिसाज है, जहां पर आपने रोगी को देखकर चेक करके उसका प्रॉपर डायग्नोस करके मिसाज रिकमेंड की। और एक कॉस्मेटिक मिसाजेस अब शहरों में बहुत शुरू हो गई है, वे जहां पर मिसाज की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां उस कंडीशन में मिसाज करवाना। तो अगर आप या किसी पेशेंट को इस डिजीज की तीव्र अवस्था है, तो वहां पर अगर मसाज करवाई जाए तो इसका डिजीज का 10 गुना बुरा प्रभाव और बढ़ जाता है। और पेशेंट आते हैं कि हमने जी मसाज की थी, और अपने आप ही वो कोई 2-4 नाम तेलों के सुन लेते हैं और वो मसाज करवाते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है। व्हेन एंड वेयर, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये फिजिशियन की डिस्क्रिप्शन पे होता है। वो फिजिशियन ही उसको पेशेंट को बता सकता है। पेशेंट कई बार अपने आप ही इस चीज को आजकल गूगल गुरु है और नेट और जो व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर बहुत चीजें ऐसी चलती हैं जो जिनको वैद्यक अनुमति नहीं है, वैद्यक सैंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोलते रहते हैं। वहां पर इस चीज के लिए चौकन्ने रहना चाहिए कि अपने फिजिशियन से राय लेकर ही इस तरफ कोई कदम उठाना चाहिए। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म है, ये मैंने आपसे ब्रीफली पहले भी अभी मैं कह के चुका हूं कि शरीर का कोई सिस्टम, कोई अंग, कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर आर्म का बुरा प्रभाव ना होता हो। तो क्रॉनिक केस जो आर्म वात के होते हैं, आप उनको कभी मिलोगे जिनको पुराने, उनको उनके आईज में डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, आई साइट पे कोई फर्क आता है उनके ऊपर, उनके कार्डियक उनके फंक्शंस भी कई बार आउट हो सकते हैं, उनके उनके बाकी शरीर के जितने भी सिस्टम है, उनके यूरिनरी सिस्टम है और सिस्टम है। तो आम का प्रभाव सार्वदेहिक प्रभाव होता है, पूरी पूरी पूरे शरीर में उसका प्रभाव होता है। आम का पाचन ही सबसे बड़ी इसकी चिकित्सा है, सो दैट कि पेशेंट की एक ऑटो क्लींजिंग हो जाए और उसके टॉक्सिन बॉडी से निकल जाएं, टॉक्सिन उसके शांत हो जाएं या उसके टॉक्सिन न्यूट्रल हो जाएं, तभी हम इसकी रोग की हम चिकित्सा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मैनेजिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसमें जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जब या आम वात की हम चिकित्सा करते हैं, तो सभी फिजिशियंस के लिए ये चीज बड़ी जरूरी है कि पेशेंट की हम क्या, आजकल क्या हो रहा है कि टेक्नो मेडिसिन जितने भी टेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, हम लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर देख लिया और देख लिया, यूरिक एसिड देख लिया या सीआरपी पेशेंट का देख लिया। एक चीज की बहुत भारी कमी होती जा रही है, दैट इज द आर्ट ऑफ टेकिंग हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। आगे के जो हमारी से जो पहली पीढ़ी गई है, उन लोगों के पास या समय ऐसा था या वो उस हिसाब से वो ट्यून्ड थे कि पेशेंट की हिस्ट्री लेना वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। आजकल हमने अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री के ऊपर उतना हम ध्यान नहीं देते। हम उनकी रिपोर्टों का कागज देखिए या पेशेंट ने अपने मोबाइल में हमको दिखा दी और डायग्नोस होना शुरू हो जाता है, जो सही नहीं है। पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री, उसके गुण, उसके जो त्रिदोष का विवेचन, उसके बाकी जो संस्थान जहां पर दिक्कत है उन सब का ध्यान करने के बाद ही हमको अपना जो किसी कंक्लूजन के ऊपर अराइव करना चाहिए। अकेले लेबोरेटरी टेस्ट ही काफी नहीं है। लेबोरेटरी टेस्ट में पॉजिटिव हो
आम बात नहीं होते देखा गया है, और लेबोरेटरी सीरो नेगेटिव टेस्ट भी जो आम बात देखा गया है, जो उसमें नहीं है, रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन आम बात है। आम बात में उधर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट उसकी खराब है। तो अकेली रिपोर्ट्स के ऊपर कभी डिपेंड ना करें, आप क्लिनिकली उसको देखें, पूरी फैमिली हिस्ट्री लें पेशेंट की, पूरा इतिवृत्त लेने के बाद ही इसको आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हो। और फिर जो लिंगन स्वेदन, जो तिक्त और कटु रस की औषधियां और उसको दीपन पाचन ये करना, आम क्लिनिक में बहुत से मेरे कुलीग हैं जो पंचकर्म नहीं करते, वो भी मरीज ठीक करते हैं। और जो विद्वान लोग जिनका पंचकर्म सेंटर्स हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे इस केस में वो बात कर रहा हूं जो हम सहज सुलभ चिकित्सा पेशेंट को दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से 80-90% तो लोग वही होंगे फिजिशियन जिनके पास पंचकर्म फैसिलिटीज नहीं है। तो वो अपने डे टू डे क्लिनिक के ऊपर इसको कैसे ट्रीट करते हैं, वो दैट इज माय मेन ऑब्जेक्टिव। मैं खुद पंचकर्म करता रहा हूँ, लेकिन नाउ विद एज वो मैंने हिस्सा अपने बेटे को आगे आगे ट्रांसफर कर दिया। तो मैं अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही अपने पेशेंट को देखता हूँ। तो उसी वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो जो चीज मैंने अपने व्यवहार में मैं लाया हूं, वो था कि पंचकोल जो चूर्ण है, जो पिपली पिपला मूल चबे चित्रक सौंठ, इसका हम 2 ग्राम चूर्ण ले लेते हैं। और पेशेंट को कहते हैं कि 3-4 पानी के गिलास में इसको उबाल लो। उबलने के बाद जब पानी शांत हो जाता है और नीचे दवाई बैठ जाती है, तो पानी उसका नितार लेते हैं। तो पेशेंट को कहते हैं कि भाई अपने पास गिलास में भर के, थर्मस में भर के पानी अपने पास रख लो। तो जब आम के पहले लक्षण ही पैदा हो, तो उस वक्त सिर्फ पंचकोल सिद्ध जल पेशेंट को पीने के देते हैं। तो उससे मल्टीपल फ्रंट के ऊपर से रिलीफ होता है, पेशेंट की भूख खुल जाती है, पेशेंट की आम जो है वो निराम अवस्था चल पड़ती है। और इसमें दूसरे नंबर पे पंचकोल की सभी औषधियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन शुंठी शुंठी बेस्ट आम नाशक जो कहा गया है, और शुंठी को नागर और विश्व भेषज भी कहा गया। इट्स इट्स द यूनिवर्सल मेडिसिन, हर सभ्यता संस्कृति में ये इस्तेमाल होती आई है। तो पंचकोल चूर्ण जो आमवाद की पहली शुरुआती अवस्था है, अभी पेशेंट को उसके सिम्टम एराइज हुए हैं, तो उस वक्त ये काम करती है। बाद की अवस्था में उतना इसका रोल नहीं है। इमीडिएटली आप पता लगे आम बात लेकर पेशेंट ऐसे जो बाकी में सिम्टम आम के बोले हैं, तो उस अवस्था में आप पंचकोल जो चूर्ण है उसका पेशेंट को उसका फांट उसी या उसका क्वाथ बना के दे सकते हो। नेक्स्ट कम्स उसके बाद जो स्नेहपान और विरेचन, जो आम बात के लिए सबसे जो बड़ी जो स्नेहपान की चीज है वो कही गई है कि उसके लिए श्लोक आता है, कटितंड कुंजसु संचरण वात कुंजरा एरंड तेल सिंगत से गंधम अगराई गच्छति। ये एक एलिट्रेशन की भाषा में, अलंकार की भाषा में ये बात कही गई है। और जो एरंडी का तेल है, ये बेस्ट इसके लिए कहा गया है। इससे विरेचन भी होता है, और पेशेंट की जो टेंडरनेस है जॉइंट्स की, जो आम संशय कारण होती है, उसको बड़ी जल्दी पेशेंट को रिलीफ होता है। और इसका यहाँ पर जो एरंड तेल है, इसको इस्तेमाल करने के बहुत तरीके हैं। कई लोग इसको थोड़े समय के लिए, 4-5 दिन के लिए, फिर 4-5 दिन के लिए ट्रीटमेंट के बीच में नित्य विरेचन के लिए देते हैं। कई इसको रात को सोते हुए दूध के साथ देते हैं, कई इसको रासा सप्तक क्वाथ के साथ मिलाकर देते हैं। वो अपने हम विवेक से हम निर्धारित कर सकते हैं कि पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है। वो ऐसी जगह तो नहीं जाना जहां उसको बाद में टॉयलेट जाने में, शॉर्ट जाने में उसको दिक्कत हो। तो उस तरीके से इसकी डोज, इसकी जो देने का तरीका, वो हम निर्धारित कर लेते हैं। देन कम्स जो सबसे जो बढ़िया दवाई, दैट इज रासा सप्तक क्वाथ। रासा सप्तक क्वाथ में आज से बहुत साल पहले जब हम प्रैक्टिस में नए नए आए थे, तो जिंदगी उन दिनों वैसे भी बड़ी आसान थी, इतना युग परिवर्तन नहीं हुआ था। तो पेशेंट इस बात को मान लेता था कि मैं 4-5 दिन रेस्ट करूंगा, और हम पेशेंट को रासा सप्तक क्वाथ रात को भिगो देते थे। सुबह उसको पेशेंट को उठाकर उसको उसको बॉयल करके, तो काष्ठ औषधियों को बॉयल करके जो अधकुट की होती थी, तो कैस्ट्रॉल डाल के उसको हम सुबह पेशेंट को पीने को दे देते थे। तो दिन में 3-4 उसके टॉयलेट आते थे, और 4-5 दिन के बाद पेशेंट को बहुत
जिसे कहते हैं अच्छा अद्भुत तरीके से उसको रिलीफ होता था। लेकिन आज की जिंदगी ऐसे हो गई है कि किसी पेशेंट को ये कहो कि भाई तुमको रोज 4-5 लूज मोशन आएंगे और पेशेंट भाग जाएगा, वो टिकेगा नहीं। तो उस कंडीशन में मैंने इस तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि मैं सैटरडे को पेशेंट को रात को रासना सप्तकवात भिगो देता हूँ। संडे को छुट्टी होती है कि संडे को आप सुबह सुबह आपने ले लेना है और उसने ये पर्टिकुलर लाइट डाइट लेनी है। तो जो आपकी विकृत जो वात है वो बहुत ही अच्छा उसका उसका प्रभाव होता है। और दूसरे नंबर पे जो लोग खुद रासा सप्तकवात जो औषधियां इकट्ठे करके बनाते हैं, उसके लिए मैं भी उनके साथ ये चीज ये मेरा भी दुख है कि जब बहुत से द्रव्य जो ऐसे मिलने अब बंद हो गए हैं, जैसे रासना है। पंजाब में हम रासना के लिए रासना के बीज डालते थे, उसे तुखम रायसन बोलते थे। अब वो मिलने बंद हो गए हैं, दे आर नॉट अवेलेबल। रासना के पत्ते मिलते हैं, मैंने अब नए सिरे से बनाना, मुझे नहीं पता कि वो रासना के पत्ते कई बार तो लोग रासना को सनाई के साथ कंपैरिजन कर देते हैं, जो बिल्कुल अलग चीज है। रासना के पत्ते मैं नेट पे ढूंढ रहा हूं कि मुझे कहाँ से मिल जाए या बीज रासना के मिल जाएं। उसके बाद जो अमृता अवेलेबल है, अरगवद अवेलेबल है। अरगवद का जो गुद्दा बाजार में निकला हुआ ही मिलता है, लेकिन वो मत लें। आप अरगवद की फली लेकर ताजी लेकर उसमें से उसका गुद्दा निकाल लें। देवदारू और गोखरू और अरिंड की जड़, यहाँ पर भी जो अरिंड की जड़ है ये भी अब पंसारी से मिलनी कम हो गई है, तो इसको भी नेट के जरिए मैं खरीदता हूँ कई बार। और पुनर्नवा, ये बेसिकली चीजें हैं चूंकि वैद्यों के पास अगर आप औषधियों की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाओगे तो पंसारी का क्या है, वो तो कुछ भी दे देगा। तो आपने इस मामले में बिल्कुल चुकन्ने रहना कि आप जो द्रव्य आप खरीद रहे हो ओरिजिनल वो द्रव्य है। क्योंकि जो पुराना अरगवत जो गुद्दा निकला है उनको मिलता है, कई बार उसमें प्यूट्रिफिकेशन हुई होती है या उसमें इंसेक्ट्स होते हैं। तो ताजा अरगवत लेकर उसकी आप फली ताजी लेकर उसमें से उसका गुद्दा निकालें। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, अब हम यहाँ बात करेंगे गूगल की। गूगल को ये आर्थराइटिस की शील्ड कहा गया है। और जितनी भी औषधियां हैं हमारी हमारे द्रव्य हम यूज करते हैं, सिर्फ गूगल ही ऐसी औषधि है जिसको ये सम्मान दिया गया है कि गूगल के नाम पर एक स्पेशल प्रकरण है। आप हम जब देखते हैं, हम चूर्ण वटी काश बाकी औषधियां जो परपटी सब सब चीजों को हम देखते हैं कि उनके प्रकरण हैं, लेकिन औषधि के नाम पर सिर्फ एक ही प्रकरण है, दैट इज गूगल। तो गूगल इसकी एक फंडामेंटल मेडिसिन है जो शोधर है और इसका यूज करते हैं। और अलग अलग जो कंडीशंस हैं वहां पर अलग अलग तरीके की जो है गूगल वो यूज की जाती है। एक सेकेंड जरा, ये आगे चल नहीं रहा। आवाज आ रही है ना मेरी? एक मिनट। ये सर आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है ना? ये ठहरो, ये थोड़ा सा अभी इसको मैं लेते हैं। अब ये गूगल के जो इसे रसायन भी कहा गया है, रसायन जो तद गेम जरा व्याधि विनाशम। ऐसी कोई भी औषधि, ऐसा कोई द्रव्य जो आपके रोग को भी दूर करे, साथ ही आपका जो प्री मेच्योर आपको एज के जो सिम्टम आ रहे हैं उसको भी दूर करे, तो उसको रसायन कहा गया है। तो इसलिए गूगल के दीपन पिछो भले कितने गुण उसके लिखे गए हैं। ये मेदनाशक भी है, कुष्ठ के लिए भी है, और पीड़िका ग्रंथि शोथ, कितनी ऐसी बीमारियां हैं जहां पर गूगल का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कौन सी गूगल कहाँ किस वक्त कैसे देनी है, ये फिजिशियन की अपनी स्किल है। तो सबसे पहले जो गूगल जिसे जो सबसे आम बात में इमीडिएटली ध्यान आता है हमारे मन में, दैट इज सिंगनाथ गूगल। ये खुद ही एरंड तेल में कूट के बनाई जाती है। और अगर अर्ली सिम्टम्स हैं, पेशेंट को ज्यादा कोई डिजीज तीव्र अवस्था नहीं है, तो सिंगनाथ गूगल की आप उसे 1 ग्राम सुबह शाम की मात्रा में दे सकते हैं। गूगल की मात्रा निर्धारित करना अपने आप में एक बड़ा कार्य है, क्योंकि जितनी भी गोलियां बाजार गूगल में आती हैं, अब 250 मिलीग्राम के आसपास स्टैंडर्ड गोलियां आती हैं। कोई कोई कंपनी शायद 500 मिलीग्राम की बनाती होगी, जो वैद्य खुद बनाते हैं वो बात अलग है। तो अगर आपने 250 मिलीग्राम की गूगल आप देनी है तो दिन में
तीन गोलियां 3 बार देनी पड़ सकती हैं, 2 गोलियां 3 या 4 बार देनी पड़ सकती हैं, या फिर आप पुड़िया में इसको पीस के दे सकते हैं। देन कम रासनादी गुग्गल, और उसके बाद योगराज गुग्गल। ये एक मल्टी प्रोंग्ड मेडिसिन है। ये आम बात में, इसके अलावा और भी 20 ऐसे रोग हैं जहां पर योगराज गुग्गल का हम इस्तेमाल करते हैं। और महायोगराज उस अवस्था में काम आती है जब क्षय की अवस्था साथ हो, क्रॉनिक स्टेज साथ हो, और साथ के जो टिश्यूज हैं उनका ह्रास होना शुरू हो गया हो। और त्रयोदशांग गुग्गल बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये उस वक्त इसमें जो औषधियां पड़ती हैं सारी वो पौष्टिक औषधियां हैं। ये तब देते हैं जब आपके पेशेंट के जॉइंट में उसकी जो सपोर्ट कम हो, पेशेंट में दसवी ना हो, उसमें मसल मास, उसका मांस धातु उसकी कम हो या क्षीण हो रही हो, तो उस कंडीशन में त्रयोदशांग गुग्गल काम करती है। दूसरी कंडीशन में से देना भी नहीं चाहिए। और पुनर्वादी गुग्गल बहुत अच्छी औषधि है। और पुनर्वादी गुग्गल को तो जिसे कहते हैं कि सर्वांग शोथ से लेकर जब जॉइंट्स के ऊपर बहुत अधिक आपको स्वेलिंग लगे, तो उस वक्त इसे इंडिपेंडेंट भी आप यूज कर सकते हैं, किसी दूसरी गुग्गल के साथ मिलाकर भी देते हैं इसको। और फिर आती है बात लाक्षादी गुग्गल की। लाक्षादी गुग्गल बेसिकली भगन चिकित्सा का औषधि है, लेकिन जब संधियों में विकृति आने लगे तो उस वक्त लाक्षादी गुग्गल काम आती है। और तीसरी चीज मैंने गोक्षादी गुग्गल लिखी है। मैं इसको लिखते हुए ये सोच, मेरे कुछ महाराष्ट्र के जो मेरे कुलीग्स हैं, जो विद्वान हैं, ये मैंने उन लोगों से सीखा था। वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आमवाद की जीर्णावस्था में गोक्षादी गुग्गल को देते हैं, और गोक्षादी गुग्गल को कई बार दूसरी और गुग्गल के साथ मिक्स करके भी देते हैं। तो मैंने भी अपने पेशेंट के लिए, अभी मैं बड़े खुले मन से इसको ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। लेकिन चूंकि मैंने कुछ विद्वान लोगों से सुना था, मैंने अभी उसके किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा, तो मैंने जस्ट एक रेफरेंस, एक मैंने गोक्षादी गुग्गल यहाँ पे लिखी है। और नेक्स्ट आते हैं हम, जो ट्रीटमेंट का जो थर्ड स्टेप था, जो पहले हमने जो पेशेंट को स्नेहपान या विरेचन दिया, उसके बाद फिर गुग्गल की बारी आई। नेक्स्ट कम्स एक और औषधि जिसके ऊपर मुझे पर्सनली बहुत फेथ है, और मैंने रोज कितने पेशेंट को ये देता हूँ। आम जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मैं लफ्ज को परे रखता हूँ, मैं आम वात या यहाँ पर आम दूषित है, उस वक्त मैं वैश्यवर्ण चूर्ण का बहुत प्रयोग करता हूँ। मेरे और कुलीग्स हैं जो, जिन लोगों से जो वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध लोगों से जो मैंने सीखा है, वहां पर जो वैशज रत्नावली का योग है, ये चक्रदत्त ग्रंथ का योग है। बेसिकली चक्रदत्त ग्रंथ है, उसमें आमवाद अधिकार में इसको लिखा गया है। इसमें अजवाइन और जो सैंधव लवण और अजमोदा, सौंठ और छिलका हरड़, ये चीजें पड़ती हैं। अब मैं जो, अगर मैं आपके साथ वो शेयर करूं कि मैं इसका योग कैसे लिखता हूं, तो मैं इसकी 2.5-2.5 ग्राम की एक एक पुड़िया सुबह शाम पेशेंट को देता हूं। कभी कभार उसमें मैं 1-1 ग्राम अश्वगंधा भी मैं चूर्ण मिला देता हूं। वो अपने आप में शोथहार है, वेदना स्थापक है, और उसको, इसके इफेक्ट्स को एनहांस करती है, जो वैश्यवर्ण चूर्ण के इफेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है। फिर साथ में गुग्गल, मैं उसके 2-2, 3-3 गोलियां रखता हूँ। कई बार तो मैं, जो फ्लेयर ऑफ फेजेस आते हैं, तो मैं बड़े भरोसे से इस चीज को लिखता हूं कि मुझे हायर मेडिसिन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पेशेंट का डाइट और लाइफस्टाइल कंट्रोल करो, प्लस कोई दवाइयां बड़ी लिखने से, महंगी लिखने से कोई वैद्य बड़ा नहीं होता। पेशेंट को सहज सुलभ चिकित्सा हमने क्या देनी है, जो चूंकि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है, सामाजिक और आर्थिक कारण है, वो भी आप लोगों को, हम लोगों को निगाह में रखने पड़ते हैं। तो इसलिए सहज सुलभ चिकित्सा देने के लिए आम बात में वैश्यवर्ण चूर्ण से बढ़िया मैंने कोई दवाई देखी नहीं आज तक। तो नेक्स्ट इज, उसके बाद रस रसायन। रस रसायन का यहाँ पर ये है कि जो जो अच्छा योद्धा होगा कोई, तो उसके पास शस्त्र तो होने चाहिए। उसकी रिपोर्टरी में, जो क्लिनिक में उसकी डिस्पेंसरी है, वहाँ हर तरीके की औषधि होनी चाहिए उसके पास मौजूद। उसमें साधारण औषधि से लेकर ऊपर तक की हर औषधि है। क्योंकि सभी पेशेंट एक जैसे नहीं होते, सभी पेशेंट की जो पेइंग कैपेसिटी है एक जैसी नहीं होती, उनकी अवस्था एक जैसी नहीं होती, और दवाइयों का रिस्पॉन्स भी उनमें एक जैसा नहीं होता।
उस कंडीशन में रस रसायन का इस्तेमाल करना अभीष्ट है। चूंकि ये कहा गया कि जब आपने कोई दोषों की परीक्षा ना करनी हो, ना रोगी परीक्षा करनी हो, ना कुछ और, ना देश ना काल, कुछ भी ना देखना हो, या ऐसा कंफ्यूजिंग भी कुछ केवल सिम्टम होते हैं, तो उस कंडीशन में चुपचाप आप रस चिकित्सा दे सकते हो। और ऋषियों ने तो हमको इस चीज की जिसे कहते हैं, कहा है कि अल्पस्यापि महार्थत्वम, आप छोटी चीज को बड़ा कर सकते हो, और प्रभुतस्य अल्पकर्मता, जो बड़ी चीज है उससे आप छोटा बना के दे सकते हो। कुर्यात संयोग विशेष काल संस्कार युक्ति भी, अपनी युक्ति के साथ आप उसके संयोग विश्लेष, उसको डिसइंटीग्रेट करना, कैसे सुबह दोपहर शाम किस किस परहेज के साथ देना है, किस अनुपान के साथ देना है, तो उसी दवाई के आप एनहांस इफेक्ट ले सकते हो, उसी दवाई के आपको आप डिल्यूट कर सकते हो, उसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो। और अल्प मात्रा उपयोगित्वा, थोड़ी मात्रा में आपने पेशेंट को अगर दवाई देनी हो है, तो रस चिकित्सा जो लोग करते हैं तो उनको जरूर करनी चाहिए, और बल्कि बड़े अच्छे इसके असर होते हैं। और जो पुराने जमाने में तो जो रस वैद्य थे, उन्हीं को ही जो एक परंपरा में वैद्य मानते थे। और नेक्स्ट है, और सब कुछ और इम्पोर्टेंट मेडिसिन, जो रस सिंदूर और मल सिंदूर जो औषधि हैं, यूजली जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं, तो या जो स्थूल शरीर वाले लोग हैं, समीर पनंग रस, ये तीनों औषधियां वहां ज्यादा इस्तेमाल काम करती हैं। और महावात विध्वंसन रस जब सार्वदेवी जो स्मॉल और बिग जॉइंट्स में पेन है तब अच्छा काम करता है। वात गजान कुछ रस सिर्फ स्मॉल जो आपके जो जॉइंट्स हैं वहां पर। और त्रिभुवन कीर्ति रस जब आम अवस्था के लिए आप आम पाचन भी करता है, और प्लस ज्वर शांति भी करता है। कई जो वैद्य हैं त्रिभुवन कीर्ति रस को गिलोय सत्व और गुदंती वसम के साथ मिलाकर सुबह अदरक और उसके तुलसी के रस निकाल के उसके साथ शहद में मिलाकर देते हैं, और बड़ा अच्छा प्रभाव करता है। इसी तरीके से आम वातारी रस, ये भी गुकुल का योग है। और देन कम्स संजीवनी बटी, ये अपने नाम को बिल्कुल सार्थक करने वाली दवाई है। आम पाचन के लिए बहुत अच्छा इसका योग है। और इसका जो ग्रंथ में भी लिखा है कि बिडंग नागरम कृष्णा पथ्यामल विविध की वचा गडुची बलात्कम विषम च योजित एतानी संभागानी गोमूत्र पेशियत। तो मल्टीपल डिजीजेज में इसकी मात्रा, ग्रंथों में तो सर्पदंश तक इसको लिखा है, लेकिन दूषी विष के अगर हम कंसेप्ट को समझते हैं, जो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के हम कंसेप्ट को समझते हैं, तो संजीवनी बटी उससे बढ़कर कोई दवाई नहीं है। वो बहुत अच्छा कार्य करती है अगर आम बात के केस का फ्लेयर ऑफ फेस में, लेकिन यह है कि जब जब तीव्र अवस्था हो तब। और अमर सुंदरी बटी, ये भी पाचन के लेवल पे काम करने वाली दवाई है। और गुदंती भस्म और श्रृंग भस्म ये वेदना स्थापक हैं। अब जो चीज की मैं आपसे विशेष एक बात साझी करनी चाहता हूं, मेरे सभी कुलीग्स इसको देखते होंगे कि हमारे पास अक्सर केस आते हैं जब पेशेंट स्टीरॉयड डिपेंडेंट होता है। एक तो होता है कि बाय नॉलेज उसकी इंफॉर्मेशन में है कि वो स्टीरॉयड ले रहा है। एक कहीं ना कहीं से अनफॉर्चुनेटली ऐसा ट्रेंड भी चलते हैं, कहीं ना कहीं गांव से या इधर उधर कहीं से अनक्वालिफाइड डॉक्टर से या कैसे किसी भी तरीके से पेशेंट धोखे से स्टीरॉयड खाया जाता है। तो दोनों कंडीशन में जब आप पेशेंट देखते हो तो अपने आप में बड़ी भारी समस्या आती है पेशेंट को स्टीरॉयड को विड्रॉ कराना या उस कंडीशन में आपको परफॉर्म करना। तो ये आसान नहीं है। उस कंडीशन में कई बार तो इस चीज का रिस्क रहता है कि हाँ पेशेंट को आराम आएगा नहीं और ख्याति आपको मिलेगी नहीं, बदनामी होगी, और ऐसे पेशेंट को हाथ ही ना डालें। तो निशा चूर्ण, मैंने मेरे दिवंगत पिता मुझे बताया करते थे कि जब ऐसा कोई पेशेंट आए तो उस वक्त अपने हल्दी का इस्तेमाल करवाना है। इधर नॉर्दर्न इंडिया में प्रथा रही है कि हल्दी को हम थोड़ा घी का हाथ लगाकर दूध में उबालकर पेशेंट को दे देते हैं। तो उसके अलावा पेशेंट की जो कौन सा स्टीरॉयड खा रहा है, तो उस कंडीशन में आप एलोपैथी डॉक्टर के साथ मिलकर उनकी कंसल्टेशन के साथ आप अपनी दवाई दीजिए। आप नहीं तो पेशेंट का ही वॉन्ट बी एबल टू मूव। जिस दिन आप दवाई बंद नहीं की, उसकी एलोपैथी दवाई बंद की, पेशेंट का चलना फिरना बंद हो जाता है और सिम्टम मैनी फोल्ड्स बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट के भले के लिए उसकी लाइफ, आगे वाली जिंदगी उसकी आसान गुजरे, तो उस कंडीशन में जो जितने भी स्टीरॉयड हैं उनकी डोज को टेपर ऑफ करो।
धीरे धीरे घटाओ। ये एक बड़ा क्राइसिस की सिचुएशन होती है। सभी मेरे कुलीग, आप गुरु सज्जन लोग बैठे हैं, वो इस चीज को फील करते होंगे। उस कंडीशन में हमने क्या करना है? उस कंडीशन में कोई अपोलोजेटिक होने की नीड नहीं है। एलोपैथी डॉक्टर से बात करके स्टीरॉइड्स की डोज को ग्रेजुअली विथड्रॉ कराओ। हो सकता है उस बात को 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, कितना टाइम लगे, उसके साथ साथ आप अपनी दवाई, रसायन, औषधियां, बाकी चीजें देने, पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम इंप्रूव करें। देन कम्स अमृतारिष्ट। अमृतारिष्ट भी आप सब जानते हैं गिलोय की औषधि है, और जीर्णावस्था में इसका ज्यादा इफेक्ट है। दशमूल क्वाथ और महारासनादि क्वाथ और शुंठी चूर्ण। देन कम्स प्रताप लंकेश्वर रस। प्रताप लंकेश्वर रस का मैंने वर्णन यहाँ पर इसलिए किया है कि एज सच ये प्रसूति ज्वर की ये मेडिसिन है, लेकिन पोस्ट डिलीवरी बहुत से केस 2-4 महीने बाद जब उनको हो जाते हैं, ऐसे केस आते हैं उनको ज्वाइंट पेन रहने लग जाती है। उस कंडीशन में प्रताप लंकेश्वर रस, किसी भी आप बेसिक दवाई जो आम बात की है उसके साथ आप ऐड कर दीजिए, और बहुत अच्छा लाभ होता है। और मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं ऐसी कंडीशन पे उनकी सहायता मांगता हूँ। तो प्रताप लंकेश्वर रस दो प्रसूता के लिए है, लेकिन आम बात जो जो डिलीवरी के बाद जिनको फ्लेयर ऑफ फेज आया या फर्स्ट उनको केस की रिपोर्टिंग हुई है, तो उस कंडीशन में हमने प्रताप लंकेश्वर रस को भूलना नहीं है। देन स्वर्णकल्प जो है, अब स्वर्णकल्प तो आयुर्वेद की जो जैसे कहते हैं, आप तो 1,60,000 रुपए जो तोला तो सोना हो गया है। अब एक एक गोली अगर हम देते हैं वो भी आप 300-400 रुपए की हो गई है। तो पेशेंट की वही बात है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देखते हुए हमको परफॉर्म करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां भी आप दे सकते हो, तो उसमें स्वर्ण भस्म में सच तो सीधी तो इसमें बड़ी कम देते हैं, लेकिन बृहद्रथ चिंतामणि रस इज ए प्रेस्टिजियस मेडिसिन। और जहां पर क्षय की अवस्था हो वहां पर रसराज रस, और जहां पर फीवर और मल्टीपल कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम हो तो कहा जाता है सर्व रोगे वसंता है, तो वहां पर वसंत मालती रस दिया जा सकता है। और फिर यहाँ पर मैंने सूती का भरण रस लिखा है। सूती का भरण रस स्वर्ण योग है, और इसको प्रताप लंकेश्वर रस के साथ भी मिला कर दे सकते हैं, इसको बाकी गुग्गुलों के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। लेकिन देना तभी है जब जो पोस्ट जो, हाँ, जैसे बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, जैसे पीसीओएस है, जो पीसीओडी के केसेस हैं, उनमें भी कई बार ऐसे रहने लग जाता है। फाइब्रॉइड के केसेस हैं, वहां पर भी आम बात की कंडीशन रहने लग जाती है। तो इन दवाइयों को अपने हाथ में उस वक्त के लिए रिजर्व रखना जहां पर कोई चारा न चले, उस कंडीशन में हम इस हथियार को चलाएं। क्योंकि आजकल इसको इतनी महंगी दवाई खाना पॉसिबल नहीं हो रहा, ये चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। तो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर हम जरूर ध्यान रखें। अब जो नए रेट्स जो आ रहे हैं कंपनियों के, आप देखो कितना कितना रेट बढ़ के आ रहा है। स्वर्ण बसंत मालती रथ का क्या रेट आ रहा है, वात चिंतामणि का, बृहद्रथ चिंतामणि का रेट कितना बढ़ गया है। तो सभी के लिए सहज सुलभ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हम उनके लिए काम कर सकें, हर समाज के वर्ग तक हमारी जो पहुंच है वो हो सके, हर चीज को हम ट्रीट कर सकें, राजा से लेकर रंक तक हम अपना मैसेज दे सकें। तो इसलिए इन चीजों को, इस फैक्टर को ध्यान रखने में एक बेसिक हमारी ये नीड हो जाती है। तो उसके बाद अदर मेजर्स हैं, जैसे जो फॉर्मेंटेशन है, बालू का स्वेद है। आजकल लोग हीटिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं, नियर नियर नॉर्मल चीज है, दोनों का आप कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर नॉर्दर्न इंडिया में हम पेशेंट को कूलर के आगे, जो एयर कूलर होता है ना, जो वाटर पानी फेंकता है जो, उसमें बैठने को मना करते हैं। एसी चल जाता है, क्योंकि वो डैम्पनेस की फीलिंग, आर्टिफिशियल फीलिंग आप रूम में करता है, और पेशेंट को जकड़ाहट और बाकी ऐसे सिम्टम उसमें बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो महानरानी तेल है, जहां पर क्षय हो रहा है वहां पर महामाश तेल है, वहां पर आप पुष्टि के लिए दे सकते हो। तो मल्टीपल ऐसे तेल है, लेकिन इनको देना, मालिश अभ्यंग तभी करवाना है जब उसकी जो आमावस्था है वो शांत हो जाए। सभी एक्यूट फॉर्म में और एक्यूट फॉर्म में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो आहार और विहार, इसमें जो हैवी और फ्राइड फूड है, खासतौर पे मैदे वाली चीजें, हीटिंग रीहीटिंग वाली ऐसी चीजें मना करनी है। और फॉर ए वाइल तो चलो कभी कभार हुआ बाहर खा लिया, लेकिन एज ए हैबिट जो एक लोग बाहर खाने के लिए ज्यादा होते हैं, तो उनको हम मना करते हैं। वो कहीं ना कहीं इसी चक्कर में फंस जाते हैं, फिर एक्सेसिव नॉन वेज, बेकरी आइटम्स, और संयोग विरुद्ध इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से
काल विरुद्ध भी बड़ा काम करता है इस चीज में। हम देखते थे कि पहले जमाने में दोपहर 12 1 2 बजे के बाद लोग तकर का सेवन नहीं करते थे, लेकिन अब कल आजकल मैरिजेज में रात को तकर के स्टॉल लगे होते हैं। तो इसी तरीके से राइस राइस हमारा जो प्रदेश है पंजाब, ये आज से 40 50 साल पहले राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं था। हम पढ़ा करते थे कि इसका प्लांट साउथ इंडिया में होता है और पानी में डूबा रहता है, लाइक दैट वी वन। मैंने खुद देखा नहीं था कभी राइस अपने बचपन में, लेकिन पंजाब नाउ हैज बिकम द लार्जेस्ट जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। लेकिन लोगों की प्रकृति के मुताबिक यहाँ पर सूटेबल नहीं है, और जो लोग चावल ज्यादा खाते हैं उनको दर्दों की टेंडेंसी बढ़ती है उनको। ऐसे ही कोल्ड और आइसी थिंग स्ट्रेस है। तो ये मैं इसको टच करके चुका हूं। और पेशेंट को ये कहें, लाइट एंड इजीली डिजेस्टिबल फूड, बैलेंस डेली रूटीन, कोसे पानी का सेवन, और अपनी दाल सब्जी में जिंजर, हींग, गार्लिक, पेपर, जीरा। जो हम वायुवर्धक आहार तो खाते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन वो वायु नाशक आहार हम कितना खाते हैं उसकी तरफ हमारा कभी कोई ध्यान नहीं होता। तो बेसिकली जो इंडियन हमारी किचन है, ये अपने आप में एक चलती फिरती डिस्पेंसरी है। ये एक हमारा जो फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है, दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम अवर किचन शेल्फ। उसमें इतना कुछ हमारे पास पड़ा है, तो वायुनाशक इतना कुछ हमारे पास पड़ा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस चीज की डिस्क्रिशन और विवेक से काम लें, तो गलत आहार विहार ना रखें, स्ट्रेस से बचें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और अपनी दिनचर्या जो अपनी इंटरनल क्लॉक है घड़ी की, जो एक तो घड़ी सूर्य के हिसाब से जो चलती है, एक वो घड़ी है जो हमारे शरीर में चलती है। वो दिखती नहीं है लेकिन वो चलती है। वो अपने अंदर की घड़ी को, नेचर की जो घड़ी है, मास्टर क्लॉक है जो इस भगवान ने हमको दी हुई, तो उसके साथ हम उसको मैच करें, तब जाकर कहीं हम इस डिजीज का हल निकाल पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत वाइडर सब्जेक्ट है। आम बात रूमेटॉइड उसका एक लक्षण मात्र है। तो ये सभी चीजें इसमें काम आएंगी, आहार विहार, स्ट्रेस, हमारा चिंतन, ये सब चीजें इसमें काम आती है। तब जाकर पेशेंट की हम कोई उसके लिए प्रभावी को काम कर पाते हैं। तो इन शॉर्ट, ये मैं जो आप बात को समझा था मैं आप तक पहुंचा पाया हूं। कोई कमी बेशी मेरी तरफ से रह गई हो, पंजाबी मेरी मातृभाषा, हिंदी में मुझे उतना फ्लो नहीं है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हेलो। Thank you so much, हेलो। sir. Thanks a lot. Such an insightful lecture on rheumatoid arthritis. अब मैं अपने सारे जो श्रोतागण हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि किसी प्रकार का संशय है या किसी टॉपिक पे कुछ क्वेरी है तो क्रमिक रूप से एक एक करके आदरणीय सर से पूछ सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। सर नमस्कार। मैं हेलो। जानना चाह रहा हूँ, अगर किसी को कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, फॉर एग्जांपल फिंगर्स में स्पैन लाइक अपीयरेंस हो जाती है इसमें, तो क्या उसको रिवर्स किया हाँ जा जी, सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड पंचकर्मा? देखो डिपेंड करता है जो आपको विकृति आई है वो किस लेवल तक आई है। चूंकि ना मैं पहले भी आपको कहा था कि जो फिजियोथेरापी है ना, वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी अंडर एस्टिमेटेड साइंस है। बहुत सी चीजें उससे सुचारू हो सकती हैं, लेकिन कई बार विकृति इस तरीके की आ गई होती है, जैसे पैरों की फिंगर्स है, फिंगर्स के ऊपर फिंगर की टिंटिंग है, अल्नर डेविएशन है। तो उस कंडीशन में विकृति को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता, वो एक तरीके का स्थायी एक डैमेज हो गया होता है वो। उसमें हेलो यही सर। देखना कि पेशेंट को यही कि देखना कि पेशेंट की लाइफ सुचारू रूप से चले, उसे कम से कम उसे को दुष्प्रभाव ना हो, और बाकी चीजें उसकी भूख, खाना पीना, बाकी चीजें नियंत्रित रहें, और उस कंडीशन में भी कम से कम दवाई दें, क्योंकि लगातार हैवी दवाइयाँ या महंगी दवाइयाँ ये लगातार चलाई में नहीं जा सकती, उसको भी आपको कर्टेल करना पड़ेगा फिर उसको उस कंडीशन में। हेलो सर। हाँ जी सर। हाँ जी। आमवात वात रक्त दिस सिम्टम्स
हमने देखा है कि आँखों विषवत वेदना, वृश्चिकवत वेदना ये लिखा हुआ है संहिता में, लेकिन ऐसा सिम्पटम्स प्रेजेंटेशंस वगैरह आपका प्रैक्टिस में देखा है आपने? देखो, दोनों चीजों में फर्क पता लग जाता है। कई बार दोनों चीजें इकट्ठी भी होती हैं, इकट्ठी भी आती है कई बार। तो आम वात के लिए पेशेंट का तो पहले सॉरी जो वात रक्त है पेशेंट का, उसका शुरू होने का, उसके अटैक के सिम्टम्स हैं वो आम वात से बिल्कुल अलग हैं। जैसे रात को संधि में आपके पैर के अंगूठे में दर्द हो जाना, विवरणता होना और होना, ये उसके सिम्टम है। आम वात के सिम्टम ये नहीं है। तो इसलिए आपको डायग्नोसिस में पता लग जाता है कि जो वात रक्त अपने आप में एक डिजीज है। बल्कि मैं तो जहां पर मैं रहता हूं उस एरिया को यूरिक एसिड बेल्ट बोलते हैं। बहुत केसेस होते हैं हमारे, लेकिन पता लग जाता है, आप डायग्नोस कर पाते हो इजीली, कोई उसमें कठिनाई नहीं है कोई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे पूछना था कि एक्चुअली इसमें जो भी ड्रग्स यूज करते हैं इसमें आम और वात के लिए, वो सारी होटपोटेंसी होती है। समटाइम पेशेंट्स जो होते हैं वो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं, तो सर उसमें इसमें पित्त शामक कोई ड्रग्स ऐड कर सकते हैं जो मतलब उनके मतलब इसके आम के इफेक्ट को भी ठीक करे और पित्त भी ना बढ़ाए उनका, मतलब हाइपरटेंशन भी ना बढ़े। देखो ऐसे है, कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं ऑलरेडी मल्टीपल डिजीजेस होती हैं, उनको होती हैं। मान लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं कि मान लो मेरे पास ओल्ड एज में पेशेंट आया, वो उसको प्रोस्टेट भी है, उसको ब्लड प्रेशर भी है, उसको डायबिटिक भी है, वो उसको मल्टीपल डिजीज है। तो उस वक्त जो जो प्राइमरी उसके सिम्टम है मेरे पास, मेरी मेरी तरफ से जो पहली प्रेफरेंस, उसको फोकस मेरा कहाँ है, एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरे नंबर पे जो बाकी सिम्टम, जैसे आपने वो कहा कि उसको मान लीजिए ब्लड प्रेशर है, यूजली तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ब्लड प्रेशर की दवाई पहले खा रहे होते हैं वो, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खा रहे होते हैं, उसको आप सेपरेट छोड़ दें। अगर वो आपके पास आम वात के लिए है देन ट्रीट ओनली आम वात। पर ऐसी बात है कि उस कंडीशन में आपका एक पॉइंट दृष्टिकोण ठीक है कि हाँ, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं या और गड़बड़ कर सकती हैं। उस कंडीशन में आपने साथ पित्त शामक औषधि साथ देनी है। ओके। टमाटर थोड़ी यार सिला जी, तो बाजार से ले लो, इस बार ले लो, बाद में बाजार से लेना, इस बार ले लो, हम बाजार से लेना। त्रिपाठी जी नमस्कार। हम खुद ही कम कर, कुछ है नहीं यार, बहुत लूट है इसमें, मैं तुमसे पहले बता दिया। त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं? हेलो। अरे वासैन जी नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी जी नमस्कार, क्या हाल आपका? बस बहुत सुंदर व्याख्यान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत प्रेरणादायक आपका ओजस्वी वक्तव्य रहा, हमारे छात्र बड़े इससे आपके प्रभावित रहे। और धन्यवाद त्रिपाठी जी, ये सब आप लोगों की विद्युत जो संघ है उसके कारण ही मैं कुछ बोल पाता हूँ, ये वही कह पाया हूँ, क्योंकि इसमें जो व्यवहार में सीखा, जो गुरु परंपरा सीखा, वही आप तक दोबारा अर्पण किया है मैंने। जो कमी लगी वो मेरी है। नहीं कोई कमी नहीं है, थोड़ा परिभाष तो होता ही है, कोई पूर्ण संपूर्ण नहीं होता कभी, वात्स्यायन जी कोई पूर्ण नहीं होता भगवान भी पूर्ण नहीं है। बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया आपने, वो बहुत ही अच्छा ओजस्वी था, ज्ञानवर्धक था, विद्वतापूर्ण था। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ को भी हृदय से साधुवाद, अभिनंदन, धन्यवाद। मैं भी इस महान संस्था को प्रणाम करता, दिल से प्रणाम करता हूं। दूसरा, मैं आप दोबारा फिर आप लोगों से आशीर्वाद लूंगा कि मुझे 3 दिन बाद अपना प्रैक्टिस करते हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो आप सबकी गुड विशेष आशीर्वाद चाहिए मुझे। Thank you so much, sir. Thanks a lot. Thank you. Now I request if anyone have any doubts remaining, you can kindly ask to sir. Otherwise, we will proceed to finish our lecture. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे
हाथ के अंगूठे से मतलब आम बात का अपन पता लगा सकते हैं कि ज्यादा स्टिफनेस वगैरह है, तो संधिवात का कैसे पता चलेगा कि आम बात है कि संधिवात है? देखिए आजकल डायग्नोस्टिक टूल्स इतने ज्यादा हैं, आप वैसे तो आप एक्सरे से अब जो संदिग्ध वात का बड़ी जल्दी पता लग जाता है, जो वो भी जो स्पर्शन दर्शन जो उसी मेथड में उस तरीके से आप सोचें। लेकिन जो स्टार्टिंग जो संधिवात है उसके पर्टिकुलर सिम्टम है, जैसे अंगूठे का आपने बोला, बहुत केसेस में थंब रूट आर्थराइटिस भी आता है, जैसे अंगूठे के नीचे वो लोग हमको कहते हैं कि हमको सिग्नेचर करने में तकलीफ होती है या पेज पलटने में, कुछ चीज गिनने में हमको दिक्कत होती है। तो संधिवात का एक छोटा रूप वो भी है। लेकिन आपने सार्वदेहिक जो उसके प्रभाव हैं, भूख है, बाकी चीजें हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस है, उन चीजों को भी ध्यान में रख के आप करोगे ना डायग्नोसिस। अकेले इस सिम्टम से तो आप नहीं किसी नतीजे पे पहुंच सकते। आपके हाँ अंगूठे में दर्द हुई तो संधिगत बात ही होगा, नहीं हो सकता, आम बात भी हो सकता है। तो आपको ये आपके विवेक के ऊपर, आपके अभ्यास के ऊपर और बाकी जो शास्त्र अध्ययन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। सर और क्वेश्चन था कि आम बात जैसे अंगूठे या स्मॉल जॉइंट में कहा गया है प्राय, पर ये मतलब मेजर जॉइंट में भी इसका इफेक्ट है कि बिल्कुल होता है, ओनली स्मॉल बिल्कुल जॉइंट होता है, में? बिल्कुल होता है। स्टार्टिंग जो छोटे जॉइंट्स में होती है और फिर बढ़ता जब सार्वदेहिक प्रभाव उसके आने लगती हैं तो ये मल्टीपल जॉइंट जो अंश कंधों में, कोहनी में, घुटने में, फिर ये मल्टीपल जगह इफेक्ट करता है। सर इसमें जैसे स्वेलिंग होगी तो अपन इसको आम बात में कंसीडर करेंगे कि मतलब बाकी सब चीजें हैं, स्वेलिंग भी है, तो मतलब आम बात रहेगा कि संधिवात? बस इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है सर। नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा जी। जो अगर मैं मॉडर्न व्यू से मैं बात को कहूं, वैसे नहीं कहना चाहिए। जो अंदर जॉइंट की श्लेष्म कला है, जब उसमें स्वेलिंग आएगी तो सूजन होगी, टेंडरनेस होगी ही होगी, जॉइंट की मूवमेंट में डिफिकल्टी होगी ही होगी। तो एक्यूट कंडीशन में दाह होगा, वहां लालिमा होगी और सिम्टम होंगे। तो पेशेंट की हिस्ट्री भी तो आपके आगे पड़ी है ना, कि उसको 3 साल से या 4 साल से संदिग्ध वात में भी टर्न कर सकता है। वो जो सभी तरह के जो वात जो संधियों की डिजीजेस हैं, एक अरसे के बाद संधिगत वात में बदल जाती हैं वो। यस सर। सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे वात व्याधि में व्रणन चिकित्सा का बोला गया, तो किस मतलब पेशेंट को व्रणन करवा सकते हैं कि ऑल पेशेंट को व्रणन करवाना जरूरी है? नहीं, सभी का कराना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पेशेंट को तो आम वात एक स्पेशल डिजीज है। ऐसे तो फिर आम वात का वर्णन वो वात रोगों में कर देते, नहीं किया ना। तो आम बात अपने आप में एक स्पेशल डिजीज है जो जिसके सार्वदेहिक प्रभाव हैं। आप एक पूरे एज ए पर्सन को एक एंटिटी देकर चले। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो तो लाक्षणिक एक प्रभाव को बयान करती है वो। यस सर। सर मेरी मम्मी को मतलब अंगूठे में बहुत दर्द था, फिर सर को दिखाया। सर का कहना था कि ये आर्थराइटिस है, पर उनने कहा महायोगराज दे दो। महायोगराज मिली नहीं मुझे, तो मैंने योगराज ओनली कोटक्कल कंपनी की दी। उस मतलब 2 या 3 दिन में ही योगराज से ही मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट मिल गया। तो आम बात फिर कंसिडर करेंगे अपन, क्योंकि योगराज का बिल्कुल बिल्कुल रोगाधिकार तो बिल्कुल। आम बात ही है। हाँ नहीं, उसमें आम बात है, आम बात ही सिम्टम आम बात के लगते हैं जो आप बोल रहे हैं। जी जी सर। सर उसमें भी पूरा पंचकोल के ड्रग इंक्लूड है, तो पंचकोल पिया अगर ना दी जाए, अगर ओनली योगराज दे दी जाए? बिल्कुल दी जा सकती है। वो आपके विवेक के ऊपर, आप डिजीज की तीव्रता कितनी है, बाकी सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं अभी आपसे कह चुका हूं कि जब हमने प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो हमने व्यवस्था पत्र लिखना है, हमने वहां दवाइयां सजानी नहीं है, सजाने के लिए नहीं लिखनी। वही दवाई लिखें बिना कमर्शियल किसी भाव के अंदर आए, जो उसको सहज सुलभ चिकित्सा हो। सुबह शाम की 3-3 गोलियां लिखी हुई उतना ही कार्य कर सकती हैं, चाहे जो पूरा पूरा कागज भर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपने डायग्नोसिस में और अपनी दवाई की चॉइस में एक एक दवाई के 20-20 योग लिखे गए हैं। आपने कौन सा पिक करना है, किस अवस्था में क्या करना है, यही तो स्किल है आपकी। जी सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू, वेलकम। On behalf of the organizing committee, I would like to thank Ravin Batsayan sir for delivering such insightful lecture. I would like to extend my sincere gratitude to our mentor, Vaidya Devendra Trivedi,
President Governing Body, Rashtriya Ayurved Vidyapit, for his continuous support, guidance, and blessings. I thank our director, Dr. Vandana Siroha ma'am, who is guiding force for all such events at RAV. I would also like to thank Vaidya Rajesh Kotecha sir, Secretary, Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express our heartfelt thanks to all the gurus, shish, and other scholars for their presence and active participation for making this webinar a successful one. बहुत बहुत धन्यवाद sir. Thank you. Thank you very much. Thank you so much.